दिल्ली तो नहीं बुलाया। एक तरफ एसआईआर चालू है, दूसरी तरफ तमाम जो बांग्लादेशी हमारी पड़ताल में दिखा कि बॉर्डर पे बांग्लादेशी खूब सारे यहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है बकायदा बांग्लादेश का। को क्या वे रहेगा? देखिए, फर्स्ट थिंग जो है एसआईआर हो रहा है 2025 के डाटा के ऊपर से। 25 का जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर एसआईआर हो रहा है। तो जिसका इसका नाम 25 के वोटर लिस्ट में है उनके पास पेपर जाएगा, एनुमरेशन फॉर्म जाएगा, नॉर्मल है। उसके बाद होगा उसका फिल्ट्रेशन। ফার্স্ট প্রসেস। আপনারা দেখছেন আদর্শ তিতুমির পত্রিকার সঙ্গে রয়েছি আমি ধৃতরাষ্ট্র। আজকের দেখাবো আপনাদের কাছে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে বেকার যুবকেরা রয়েছেন সেই যুবকদের একেবারে মানে কি বলবো, সেই যুবকদের মুখে খাবার অন্ন কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশি যুবককে পুলিশের চাকরি দেওয়া হয়েছে। আপনারা এর আগেও দেখেছেন। আমরা আজকে দেখাবো এই কারণেই যে এই যে পুলিশ বাংলাদেশি যুবক কল্লোলবালা, এই কল্লোলবালা যে পুলিশ তার বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল আমাদের সাংবাদিক, কিন্তু তার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল তার স্ত্রী ঘর থেকে বেরোলেনি না, একদম ফাঁকা বাড়ি পড়ে রয়েছে, বিরাট বড় বাড়ি পড়ে রয়েছে, বাড়ি থেকে বেরোলেনি না। আমাদের এখানে একটাই প্রশ্ন আমরা করতে চাই যে কিভাবে সম্ভব, যেখানে আমাদের রাজ্যের বেকার প্রচুর পরিমাণে বেকার, চাকরি নেই, ব্যবসা করার সেই মতন জায়গা নেই, নানান রকম যুবকদের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়ার গাঁজার নেশা, বিভিন্ন নেশা যুবকদের ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ থেকে একটি ছেলে সপ্তম শ্রেণীতে সেখান থেকে পাশ করে তিনি আমাদের ভারতবর্ষের বনগাঁতে গোপালনগরের এখানে তিনি চলে আসলেন, আর আসার পরে তার পুলিশের চাকরি হয়ে গেল। আপনারা কি বলেন? আমাদের ক্রাইম রিপোর্টার সুরেন্দ্র কুমার সিং তিনি তুলে নিয়ে এসছেন। এই যে মানে এখন এবার আমরা যে তথ্য দেবো আপনাদের আরও সাংঘাতিক। আমরা এর আগে বলেছিলাম যে কল্লোলবালা তিনি যে তার দিদি ছিলেন সুপ্রভা রায়, সেই দিদিকে কিন্তু এই কল্লোলবালা বাংলাদেশ থেকে তার স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে চলে এসেছিলেন, সব ছেলে মেয়ে সহ। তার জামাইবাবু অসীম রায়, তার বক্তব্য আপনাদেরকে আমরা শুনিয়েছিলাম যে তিনি কি বলছেন। আমাদের এই অফিসে এসেই, বাংলাদেশ থেকে এই অফিসে এসেই কিন্তু তিনি ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন আমাদের, আমরা সেটা আপনাদেরকে শুনিয়েছিলাম। এরপর ইনি এই সত্যি কথা বলার কারণে এক রাতের মধ্যে এই অসীম রায় বলে যে তার জামাইবাবু বাংলাদেশ থেকে যিনি এসেছিলেন, যার বাড়ি হচ্ছে মঠবাড়ি, ডাকঘর, বহুগ্রাম, উপজেলা মুকসদপুর, জেলা গোপালগঞ্জ, এক রাতের মধ্যে কিন্তু তাকে চলে যেতে হয়েছে আবার বাংলাদেশে ভয়ে। এবং সেখানে যে নীরব রায় এতদিন এই গোপালনগর এলাকায় ছিলেন, সেই নীরব রায়কে কিন্তু তার বাবার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু অন্য যা তার নিধি রায় বোন, তারপরে তার হৃদয় রায় যে ভাগ্নে, এগুলো সব কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে। শুধু লুকিয়ে নেই, তার বাবাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছেন। কি মেসেজ করেছেন? যে আমরা এবার সিএতে নাম তুলছি, কোনো কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না, আর এই অসীম রায়কে মৃত দেখিয়ে কাগজপত্র তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। যেটা তার এই পুলিশের যে বাবা মা ছিলেন ফুলমালা বালা এবং কেশবচন্দ্র বালা, তাদেরও কিন্তু বাংলাদেশের যেমন ভোটার কার্ড আমাদের কাছে তাদের রয়েছেন, তেমনি কিন্তু এখানকার ভোটার কার্ডও তারা বার করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কেশবচন্দ্র বালা যখন মারা যান এখানে, তাকে দাহ করে এখান থেকে সমস্ত কিন্তু তার ডেথ সার্টিফিকেট জোগাড় করে নেওয়া হয়েছে। বুঝতে পারছেন?
আমরা খবর করলাম 20 লক্ষর ওপরে মানুষ খবরটা অবলোকন করলেন, কিন্তু পুলিশ এখনো কল্লোলওয়ালাকে ধরতে পারলো না। কেন? এ তো খুব বড় রকমের দুর্নীতি, খুব বড় রকমের জালিয়াতি, যেখানে পুলিশ বিভাগ, যে কোনো মানুষের চাকরি হলে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়, পুলিশের তদন্ত হয়, যে পুলিশের ডিআইবি বিভাগ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, তারা তদন্ত করে যে এই লোকটি আমাদের ভারতীয় কিনা, এই লোকটির বিরুদ্ধে কোনো কেস আছে কিনা, সব কিন্তু তদন্ত করে আমাদের রাজ্যের পুলিশ। তাহলে কিভাবে তিনি পুলিশের চাকরি পেলেন জানতে চান তো? আমরা জানাবো সেটা আপনাদেরকে, যে কিভাবে এই কল্লোলওয়ালা পুলিশের চাকরি পেয়ে গেলেন, আর কিভাবে হৃদয় রায়, সুপ্রভা রায়, নীরব রায়, নিধি রায়, এই সমস্ত সবাইকে কেন বাংলাদেশ থেকে এখানে নিয়ে আসা হলো, কেন তাদের নামগুলোকে পরিবর্তন, বাবার নামগুলোকে পরিবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে, এগুলোরও তো তদন্তের প্রয়োজন। আমরা তদন্ত করছি, কারণ আপনারা জানেন যে যার কেউ নেই তার জন্য আমরা রয়েছি। আমরা রয়েছি মানে আমরা তাদের খবরটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য রয়েছে। কিভাবে সম্ভব বাংলাদেশি একটি যুবক, তাকে পুলিশের মতন এইরকম একটা শৃঙ্খলা পরায়ণ বাহিনী, আমাদের রাজ্যের যারা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে, সেই পুলিশ বিভাগে একজন বাংলাদেশি লোককে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পুলিশ যদি আমাদের রাজ্যের বা আমাদের দেশের খোঁজ খবর নিয়ে বাংলাদেশে, তারা সেই খোঁজ খবর, এখন যে অবস্থা চলছে বাংলাদেশে, যদি আমাদের দেশের গোপনীয়তা সেখানে ফাঁস করা হয়, তার দায় কে নেবে? কে নেবে তার দায়? বাবাকে লিখছেন ছেলে, আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে রয়েছে, বাবাকে বলছেন তোর কোমরে জোর নেই, তাই তুই তোর বউকে নিয়ে যেতে পারলি না। ভাবতে পারছেন? এইসব ছেলেরও শাস্তি দরকার আছে। দেখুন, এখানে আমরা একটা খুব জোরালো প্রশ্ন তুলতে চাই, যে আপনারা জানেন যে যখন আমাদের এ রাজ্যে হোক বা যেখানকারই হোক, যখন তাদের চাকরি হয়, সেই রাজ্যের যারা পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এলাকায় থাকে, সেখানে কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, ডিআইবি, তারা কিন্তু যে চাকরি পায় একেবারে তার বাড়ি পর্যন্ত চলে যায় খোঁজ খবর নিতে, একেবারে বাড়ি পর্যন্ত চলে যায়। আর পুলিশ কমিশনারেট যেখানে আছে সেখানে হচ্ছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ। তাহলে আমরা বলতে চাই যে এই যে গোপালনগর এলাকা থেকে এই যে কল্লোলওয়ালাকে যে পুলিশের চাকরি যখন সে পেল, তাহলে সেই সময় যে ডিআইবি অফিসার ছিলেন তদন্তকারী হিসাবে, তার তদন্তে গাফিলতি ছিল তো? কি বলেন আপনারা? তার তদন্তে যদি গাফিলতি না থাকে, তিনি যদি উৎকোচের মাধ্যমে ভুল রিপোর্ট না দিয়ে থাকেন, তাহলে কিভাবে চাকরি পেলেন? কিভাবে চাকরি পেলেন? আমরা কিন্তু অত সহজে ছাড়ছি না। আপনারা মনে করবেন যে আমরা অত সহজে ছাড়ছি না। আমরা যখন এই কল্লোলওয়ালার পুলিশের চাকরি পাওয়া থেকেও আমাদের কাছে বড় কথা হচ্ছে আমাদের বাংলার বেকার যুবকদের হয়ে আওয়াজ তোলা। বাংলার বেকার যুবকদের যেভাবে আপনার এই বগুলা, বনগাঁ, পেট্রাপোল, এই সমস্ত বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে বাংলাদেশিরা এসে তারা আমাদের এই পশ্চিমবাংলা বলুন বা ভারতীয় যুবকদের চাকরির রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। তারা তো বাংলাদেশ থেকে 8-9-এ পড়ে এসে এখানে 5-এ ভর্তি হচ্ছে, 4-এ ভর্তি হচ্ছে। তাহলে একটা স্বাভাবিকভাবে যে 8-এ পড়ে যদি 4-এ ভর্তি হয়, তাহলে আমাদের রাজ্যের একটা ছেলে সে কিভাবে পেরে উঠবে এদের সঙ্গে? কারণ এরা তো আগেই যে ক্লাসগুলো থেকে বাংলাদেশ থেকে অধ্যয়ন করে এসছেন, সেই ক্লাস আবার এখানে এসে দ্বিতীয়বার পড়ছেন। আর আমাদের রাজ্যের যারা ছেলেমেয়েরা রয়েছেন তারা তো একবারই পড়াশুনো করছেন। তাহলে তারা কি করে পারবেন? তদন্ত হোক, তদন্ত করে দেখা হোক যে কিভাবে কল্লোলওয়ালার চাকরি হয়েছিল, কিভাবে এই মানে ফুলমালাওয়ালা, কেশবচন্দ্রওয়ালা, মণিবালা, নীরব রায়, নিধি রায়, সুপ্রভা রায়, হৃদয় রায়, এরা কিভাবে বাংলাদেশ থেকে এসে আমাদের ভারতীয় ভোটার কার্ড, ভারতীয় আধার কার্ড, ভারতীয় প্যান কার্ড কিভাবে জোগাড় করলেন? তদন্ত হোক,
আমরা তদন্তের দাবি রাখছি। আপনাদের কমেন্ট চাই, আপনাদের আরও বেশি বেশি করে শেয়ার চাই, যাতে রাজ্য পুলিশ এই খবরে একদম যাতে তাদের ভেতরে হুলস্থুল পড়ে যায় যে কিভাবে এই কল্লোলওয়ালা চাকরিটা পেয়েছিল, এবং এর পেছনে যাদের হাত রয়েছে তাদের কঠোর শাস্তির জন্যই আমাদের এই প্রতিবেদন। ভালো থাকবেন। सुनने में आया कि कई बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ इंडिया में जो है हिंदू बन के रह रहे हैं या हिंदू परिवारों से शादी करी, लड़कियों से शादी करी। इस तरह के मामले आपके पास कितने आए, किस तरह का मामला रहता है, कैसे ये लोग को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है अगर इस तरह के, और अगर ये दस्तावेज बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे में कैसे इंडियन गवर्नमेंट इनको वो कर पाएगी? ऐसे तो सच बताया आपने। जो लाभ जिहाद बोल के एक हम लोग आइडेंटिफाई किया है, जो मुस्लिम लोग ऐसा टैप में ले रहे हैं हिंदू लड़कियों से, अपना नाम चेंज करके उससे बात करो, उससे शादी का टॉप दो और शादी कर लो, हो सके तो आप हिंदू भी बन जाओ, और इंडिया का जितना भी इंटरनल जो मैसेज है, जो विषय है, वो अपना देश में पास करे। ऐसा बहुत सारे हो रहा है। इसीलिए मुझे इंडिया का हर हिंदू बहनों से एक ही विनती है, कोई भी लड़का से शादी करने से पहले उसका आगे पीछे खानदान के बारे में सबसे पहले जानकारी ले। जो मुस्लिम बांग्लादेशी इंडिया में आके हिंदू आइडेंटिटी बना के रह रहे हैं, जो जैसे हम अवैध बांग्लादेशी या अवैध घुसपैठिया कहते हैं, वो किस तरीके से इस इलाके में अपने पैर जमा रहे हैं, उनको किस तरह से देखिए, उनको identify हर कर तरीके पाएं? से मदद कर रही है टीएमसी पार्टी। ये पार्टी सिर्फ पैसा के लिए हर कुछ कर सकते हैं, देश को भी बेच सकते हैं लोग। इनमें जितना भी लीडर है पैसा खा के अपना दस्तावेज बना रहा है, सबको दे रहा है बांट के। तो हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो जिहादी हो या तालिबानी हो, वो कोई आतंकवादी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको पैसा से मतलब है। इसीलिए ये सरकार को यहाँ से हटाना चाहिए, और कोई भी बंदा ऐसा दस्तावेज बनाने के लिए जा रहा है उसको जांच पड़ताल करके करना चाहिए काम। और दूसरी बात है, सरकार और प्रशासन को पता होना चाहिए अपना एरिया में नया कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये सब स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस चाहे तो हर कुछ निगरानी में रख सकते हैं, अपना पार्टी का जरिया भी रख सकते हैं। लेकिन इन लोग क्या है, अपना रूलिंग पार्टी का मतलब छाया में आके हर कोई अवैध काम कर रहा है, उन लोग से करा रहा है। अभी सत्ता में जो है उनको चाहिए सत्ता, बस देश जाए भाड़ में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये ठीक नहीं है। एक तरफ एसआईआर चालू है, दूसरी तरफ तमाम जो बांग्लादेशी, हमारी पड़ताल में देखा कि बॉर्डर पे बांग्लादेशी खूब सारे यहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है बकायदा बांग्लादेश का। को क्या वे रहेगा? देखिए, फर्स्ट थिंग जो है एसआईआर हो रहा है 2025 के डाटा के ऊपर से। 25 का जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर एसआईआर हो रहा है। तो इसका नाम 25 के वोटर लिस्ट में है, उनके पास पेपर जाएगा, एनुमरेशन फॉर्म जाएगा, नॉर्मल है। उसके बाद होगा उसका फिल्ट्रेशन। फर्स्ट प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, इतना आ गया, 99% आ गया, 100% आ गया, वो 100% आना ही था। जो मर गया उनका छोड़िए, बाकी आना ही था। तो उसके बाद आने के बाद जो देखा जाएगा, फर्स्ट 2002 में कौन था, सेकेंड देखा जाएगा उसका नाम अगर नहीं था तो 2002 में उनका बाप, माँ, नाना, नानी, ये जो 6 है इसमें से किसका इसका नाम था। नाम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको बोलेगा तुम पेपर्स दिखाओ, पेपर्स में जाएगा। ये है मैनिपुलर इशू। तो एसआर होने के बाद जो जो वोटर आईडी यहाँ पे बना लिए, किसी दादा को पकड़ के, किसी दीदी को पकड़ के, 2023 साल अगर मैं गलत ना हूँ तो 12 का एक टीएमसी का प्रेसिडेंट थी, नाम भूल रहे हैं उनका। शी ओपनली स्टेटेड जे जाकिर दा है यहाँ का, जाकिर दा से आप लोग बात कर लो तो जाकिर दा आपको वोटर आईडी करवा देंगे, लिंक करवा देंगे। लिंक समझना चाहिए। मान लीजिए मेरा नाम तरुणजोरी तिवारी है, मान लीजिए मेरा माता पिता का नाम 2002 का एसआईआर में नहीं है। मैंने देखा बीरभूम में एक तिवारी है, बीरभूम एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, बीरभूम में एक तिवारी है, तो उसको मैंने अपना पिता बना दिया, उसका नाम डाल के मेरा लिंक करवा दिया। जो लिस्ट आया प्रिलिमिनरी, आपने देखा होगा बंगाल का, करीबन 15 लाख ऐसे हैं जो 15 साल की उम्र में बाप बन गए। बहुत ऐसे हैं जो 40 साल में नाना बन गए,
बहुत ऐसे हैं, एक मतलब बंदा उसके साथ लिंक हो रहा है 7 या 8, कुछ क्वाइट स्ट्रेंज है, नंबर कम नहीं है। करीबन 1 करोड़ 68 लाख 1 करोड़ 68 लाख इनका पेपर्स ठीक नहीं मिल रहा, मैपिंग में मिल नहीं रहा, उनको हियरिंग में बुलाएगा शायद कमीशन, तो इशू है। तो एसआईआर जो होगा 2025 के डेटा के ऊपर ही होगा। और एक इशू है यहाँ पे, आप लोग देख भी रहे हैं, नेशनल मीडिया में दिखा रहा है, जो लोग भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? उनको मालूम है सब कागज तो करवा लिए, लेकिन 2025 के हिसाब से नाम भी है, 2002 का क्या लाए, लिंक क्या दिखाया। उसके बाद भी बहुत सारे लोग अभी तक है, क्योंकि टीएमसी ने बोला कि तुम रह जाओ, हम लोग तुमको देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में फिर नाम डाल देंगे। और कुछ लोग हैं जिसके पास कुछ पेपर्स नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, फिर भी वो लोग यहाँ पर है। आपको नॉर्मल लोग सोचेंगे जो बंगाल में नहीं है, बंगाल का नहीं है, बंगाल का बारे में आइडिया नहीं है, वो लोग सोचेंगे क्यों, ये लोग क्यों है, ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दे आर द एक्चुअल वोटिंग मशीनरीज। क्यों बोल रहे हैं मशीनरीज? मान लीजिए एक बंदा मर गया, मान लीजिए इसका नाम रघुदास है, रघुदास मान लीजिए मर गया, तो रघुदास के लिए वोट देगा कोई बांग्लादेशी गाजी, वो जाएगा वोट देगा, वोट देके चला जाएगा, फॉल्स वोटिंग होगा। वोट के टाइम में जो भी ये होगा, आपको फियर साइकोसिस क्रिएट करना होगा, बॉम्बिंग का इशू होगा, ये लोग ये काम करेंगे। क्यों करेंगे? टीएमसी को मालूम है ये लोग बांग्लादेशी है, ये लोग को मालूम है टीएमसी पावर में है, अगर उनके बात ना सुने तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, तो उनके बात सुन के ये लोग काम करते हैं। तो वोटिंग मशीनरीज है ये लोग। तो आपका कहने का मतलब है कि जो बॉर्डर पे जितने भी, चाहे वो हिंदू बांग्लादेशी हो चाहे वो मुस्लिम बांग्लादेशी हो, और उनके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो बॉर्डर दलाल के थ्रू आए हैं पार करके, तो एक तरीके से वो टीएमसी की वोटर मशीन है। हिंदू बांग्लादेशी को लेकर टेंशन नहीं है, हिंदू बांग्लादेशी लेके कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हिंदूज आर ऑप्रेस्ड। वो वहां पे ऑपरेशन होके उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, इसलिए आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1 सितंबर 2025 तक नोटिफिकेशन किया। नोटिफिकेशन बहुत क्लियर है। क्या है नोटिफिकेशन? 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी हिंदू और रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अगर इंडिया में आए, तो इंडिया में उनका कोई वीसा नहीं लगेगा। पेपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो या ना हो, वीसा हो या ना हो, उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। वो फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन एग्जेम्पशन ऑर्डर निकल गया। तो हिंदू बांग्लादेशी के लिए कोई टेंशन कुछ नहीं है। वो लोग तो टॉर्चर्ड होके आया, वो रिफ्यूजी है। आप रिफ्यूजी और इनफिल्ट्रेटर दोनों को एक नहीं कर सकते। मान लीजिए जो मार खा के आया और जो मारा, जो उधर भी मारा और इधर भी आ रहा है मारने के लिए, ये फिट नहीं बैठता। तो हिंदू बांग्लादेशी आर रिफ्यूजी, मुस्लिम आर इनफिल्ट्रेटर्स। तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत पुराना गेम है, मैंने रिलीजियस एंगल में जा रहा हूँ, लीगल एंगल से छोड़ के। बहुत सारे यहाँ पे एनजीओ भी बन रहा है। आपको बाबरी मस्जिद वाला इशू भी देखा कि मिशन 2047, पीएफआई बैन होने से पहले पीएफआई का डिफरेंट ऑफिस में छापा पड़ा था, आप लोगों को याद होगा। वहां पे एक कागज निकला था, मिशन 2047। क्या था? गजवाए हिंद। डायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली करो। तो दिस आर द प्लान ऑफ ऑल आर प्लान ऑफ दैट गजवाए हिंद। बहुत सारे एनजीओ है, एनजीओ काम कर रहे हैं, इसलिए फंडिंग आए तो मुस्लिम को लेकर, मुस्लिम का नंबर बढ़वाना है। एडुकेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नंबर बढ़वाना है, बाबरी मस्जिद बनवाना है। ये है गेम। मेरा इसमें